All right, God is good. And all the time. I was not expecting these decorations. If I knew, I would have prepared a very soft and buttery message today. अगर मुझे मालूम होता तो मैं बहुत ही नरम और बहुत ही मस्का लगाने वाला संदेश को आज तैयार करता. But I was not knowing. लेकिन मुझे नहीं मालूम था इस सब के बारे में. But perhaps even if I knew, you would not still get a buttery message. शायद अगर मुझे मालूम भी होता शायद फिर भी आपको मस्का लगाने वाला संदेश नहीं मिलता. Every time I prepare a very encouraging message, it ends up into a very fiery message. जब मैं उत्साहित का मैसेज तैयार करता हूँ और अंतिम में क्या हो जाता है, वो बहुत ही आग लगा देने वाला मैसेज हो जाता है. And today I want to talk to you something on setting your fire for the Lord. और आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें मसीह में कैसे हमें आग में ज्वाला में हमें बढ़ना चाहिए. I want to prepare you for tomorrow's persecution. और कल के ताड़ना के लिए मैं आपको तैयार करना चाहूँगा. Let me make this very clear. और आज मुझे ये बहुत ही क्लियर करने दो. We are not living in the middle of the church age right now. और आज हम कलीसिया के बीच में मध्यम में हम जी नहीं रहे हैं इस समय. The middle of the church age is the age of darkness and gloominess and coldness. और कलीसिया के जो बीच है वो क्या है, वो बहुत ही ठंडा पड़ चुका है, बहुत ही नरम हो चुका है. The beginning of the church age was the church was on fire for the Lord. लेकिन शुरुआत की कलीसियाएं कैसे थी, सभी लोग परमेश्वर की आग की ज्वाला में उन लोग जा रहे थे. They were persecuted for the cause of the gospel. उन लोग शुभ समाचार के कारण उन लोगों को ताड़ना मिल रही थी. They went through all kind of persecutions and tribulations of life. और हर एक ताड़नाओं के माध्यम से उन लोग गुजर रहे थे. They were put in the prison for Jesus. उन लोगों को जेल में डाला गया था यीशु मसीह के कारण. They were put in front of the hungry lion for the Lord Jesus Christ. और भूखे शेर के सामने उन लोगों को रखा गया था यीशु They मसीह were के कारण. skinned alive for the Lord Jesus Christ. उन लोगों को जिंदा मारा गया है यीशु मसीह के I कारण. remember reading the books of the martyrs of the Lord Jesus Christ before. और मैं किताब पढ़ रहा था जहां पर यीशु मसीह के कारण बहुत से लोगों को मारा गया है. And they would catch the Christians who would stand up for the gospel. और उन लोग पकड़ते थे उन लोगों को जो यीशु मसीह की सच्चाई के लिए खड़े होते थे. And they would persecute those Christians. और उन लोग क्या करते थे, उस मसीहों को ताड़ना करते थे. They will make them sleep on a bed. और उन लोगों को बिस्तर में सुला देते थे. And take long handkerchiefs. और उन लोग एक लंबा रुमाल को लेते थे. And while this person on the bed is thirsty, और जब वो व्यक्ति बहुत ही प्यासा था, longing for a drop of water to quench his thirst, और पानी की बूंद के लिए वो तरस रही थी अपने प्यास को बुझाने के लिए, single drops of water will come on their throat. और पानी की एक बूंद लोग के मुंह में गिर जाता था. And they would just suck that water. और वो पानी को उन लोग अंदर लेते थे. And while they would suck the water, और जब उन लोग को पानी को अंदर लेते थे, the piece of handkerchief will go into their throat. और रुमाल की जो छोटी सी हिस्सा है वो गले के अंदर उतर जाता था. And they would drink the second drop of water. और दूसरा जो पानी की बूंद उसको भी उन लोग पी लेते थे. And when they would suck it in, और जब उन लोग अंदर ले लेते थे पानी को, the handkerchief will go more in. और जो रुमाल है वो गले के और अंदर उतर जाता And if था. they would take about 50 drops of water, और उन लोग 15 अगर ड्रॉप उन लोग पानी के लेते हैं, and 50 inch of handkerchief would go into their stomach. और 15 इंच का जो रुमाल है वो उन लोग पेट के अंदर चले जाते हैं. And here it is, my people of God. और यहाँ पे देखो परमेश्वर के लोग, And these people would pull the handkerchief out of their और इन intestine. लोग क्या करते थे, उन लोग के पेट से वो रुमाल को बाहर निकाल के खींच देते थे. Just because they were preaching and believing and worshiping the Lord Jesus Christ. क्योंकि उन लोग यीशु मसीह की आराधना कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे इसके वजह से. Those were the Christians in the early age. और वही प्रकार के लोग थे मसीह लोग उस समय. And then later on we see और उसके बाद हम देखते हैं the church becoming very cold. और जो कलीसिया बहुत ही ठंडे पड़ चुके The हैं. church becoming all about me and myself. और कलीसिया केवल अपने बारे में हो चुका था It's सभी. not about Jesus और Christ. ये यीशु मसीह के बारे में नहीं था. It's about my wealth. और ये मेरे धन के बारे में It's है. about how I am. और ये मेरे बारे में है, मैं It's कैसा about हूँ. how great people talk about me. और ये ऐसा है कि कैसे लोग मेरे बारे में अच्छा बोलते It's हैं. about presenting myself in front of the people. और मुझे प्रस्तुत करना है लोगों के सामने. It's not about Christ on the crucified on the cross. और ये यीशु मसीह के बारे में जो क्रूस में चढ़ाया गया है. Those things about Jesus was vanishing away. और जो यीशु मसीह के बारे में सब कुछ मिट रहे थे. And individuals wanted to perform themselves before the world. और व्यक्तिगत लोग क्या करते थे, अपने आप को उन लोग प्रस्तुत करना चाहते थे संसार के It's सामने. about riches.
और ये धन के ऊपर थे, status, और अपने स्टेटस के ऊपर, power, और अपने शक्ति के ऊपर, nothing about Christ. यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं। I thank God for the persecution in this day and age. लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, आज के समय में बहुत ही ताड़नाएं हैं। This is a day and age of persecution. और ये समय है जो जहाँ पे ताड़नाएं हमें मिलेंगे। At the same time, the church is also lukewarm this morning. और इसी समय क्या है, कलीसिया ना ठंडा है ना गर्म है। I'm not talking about our church this मैं morning. हमारे कलीसिया के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। I'm talking in general that the churches in the world have become cold and lukewarm. लेकिन मैं जनरली बात कर रहा हूँ जहाँ पर कलीसिया भी ठंडा पड़ चुके हैं। It's all about the richness of the church. और ये केवल उन लोग के बारे में जो धन के बारे में है। The church is no more looking up unto Christ. और कलीसिया यीशु की ओर नहीं देख रहे इस The समय। church is not prepared for the persecution. और कलीसिया ताड़नाई के लिए उन लोग तैयार नहीं है। But thank God for the churches in this day and age. There are still churches that is standing up for लेकिन Christ. प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, आज भी बहुत सारे कलीसिया जो परमेश्वर के लिए उन लोग खड़े रहते हैं। The church is still suffering for the cause of Christ. और जो कलीसिया यीशु मसीह के लिए बहुत ही दुख को झेल रहे The हैं। church is still persecuted. The pastors are still persecuted. और कलीसिया और पासवान को अभी ताड़नाई किए जा रहे हैं। I'm here to tell you, if you stand up for the Lord Jesus Christ, you'll be rejected, you'll be refused, you'll be mocked, and you'll be persecuted. अगर आप यीशु मसीह के लिए खड़े रहेंगे तो आपको मजाक उड़ा जाएंगे, आपको नकारा जाएंगे, आपको मना किए जाएंगे। This morning, I'm not here to tell how great you are. और मैं आज सुबह में यहाँ पर नहीं हूँ कि आप कितने अच्छे हैं। This morning, I'm here to tell you that we serve a great God this लेकिन मैं morning. आपको बताना चाहूंगा कि हम सच्चा परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। It's not about you anymore. It is about the great God, the Lord Jesus ये Christ. आपके बारे में नहीं, लेकिन परमेश्वर जो महान है उसके बारे में है। If you agree with me, shout an amen. आप आमीन कह सकते हैं इस समय। If you agree with me, lift up your hands and say hallelujah. हालेलुया। He's a great God, dear friend. वो बहुत ही महान परमेश्वर है मेरे Let us प्रियो। decrease this morning. हम अपने आप को घटाएंगे Let Christ increase ताकि this यीशु morning. मसीह बढ़ सके, May we hide ourselves behind the cross ताकि हम क्रूस के अधीन में ताकि हम छिप so सके, that Jesus Christ is magnified ताकि यीशु मसीह बहुत ही बड़ा हो सके in our words, हमारे कामों में, in our action, हमारे हर एक क्रिया in में, our ministry, हमारे सेवकाई में, in our dressing, हमारे पहन सहन in में, our family हमारे life, परिवार के जीवन in our में, job, हमारे काम in में, our business, हमारे कार्य में, in raising our हमें children, बच्चों को बढ़ाने in में, speaking forth the word of God, ताकि हम जो भी कहें परमेश्वर की वचन के ओर कहें, in serving Him, और उसको सेवा करने in में, singing for Him, और उसके महिमा के लिए गाने में, in living for उसके Him, महिमा के लिए जीने के in लिए, everything. सब कुछ में, May Christ be ताकि glorified. परमेश्वर को महिमा मिले। This church is not about you. और ये कलीसिया आपके बारे में नहीं This है, church is about the Lord Jesus लेकिन ये Christ. कलीसिया यीशु मसीह के बारे में And है। if you agree with me, shout an अगर amen हम this मानते हैं तो morning. आमीन कहेंगे। We are not here about ourselves this morning. और आज हम यहाँ पे खुद के लिए नहीं है मेरे प्रियो, We are preparing ourselves to become a strong soldier of the Lord Jesus और हम अपने आप को Christ. तैयार करते ताकि हम एक मजबूत सेना बन सके। We are not becoming clowns for Christ. हम परमेश्वर के लिए क्लाउन्स नहीं बन रहे हैं, Not jokers for Christ. हम परमेश्वर के लिए जोकर नहीं बन We are रहे हैं, becoming soldiers for the Lord Jesus Christ. लेकिन हम यीशु मसीह के लिए सेना बनने जा रहे To हैं, stand up and fight the good fight of ताकि faith. हम खड़े होकर अच्छा विश्वास के लड़ाई को लड़ सके। That is the reason why you and I called this morning. इसीलिए हम यहाँ पर बुलाए गए हैं मेरे प्रियो। Every apostles, when we read about their life, हर एक हम प्रेरित के बारे में जब हम पढ़ते हैं, we read that they were fighters for the cause of Christ. और हम पढ़ते हैं कि उन लोग यीशु मसीह के लिए लड़ते थे, They were not ashamed of the gospel of the Lord लोग Jesus सुसमाचार Christ. के कार्य में उन लोग लज्जित नहीं थे, They fought the good fight of the Lord उन्होंने Jesus. अच्छा लड़ाई को लड़ा है यीशु मसीह They के were लिए। not afraid to die for उन लोग Jesus. मरने के लिए उन लोग डरते नहीं थे, They stood up, लेकिन लोग खड़े हो गए lifted up their voice. और उन लोग अपने आवाज को उठाए They made themselves known to the whole world. और उन लोग अपने आप को पूरे संसार को जानने के लिए They are दे दिया। Christians. और उन लोग की क्या है, उन लोग मसीह है। Sometimes I sit quietly and I wonder और बहुत सारे समय में चुपचाप रहता हूँ और सोचने लगता हूँ how many people they call themselves as Christian would today lift up their voices and loudly proclaim to this world, मैं I am a child of Christ. मैं सोचने लगता हूँ कि कितने सारे लोग जो अपने आप को मसीही कहते हैं अपने आवाज को उठा सकते हैं और बता सकते हैं कि मैं परमेश्वर का संतान हूँ। How many of us are not ashamed of the word of God this morning? हम कितने सारे लोग यहाँ पर लज्जित नहीं परमेश्वर के वचन के That कारण, you are able to openly carry the word of God and boldly proclaim that you are the child of God who believes and obeys from cover to cover that this is the word of God. कि आप खुलेआम बाइबल को उठा के आप अपने हाथ में रख सकते हैं और बोल सकते हैं कि मैं परमेश्वर का संतान हूँ और ये परमेश्वर का वचन है। We are preparing for the persecutions. और हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं आने वाले ताड़ना के लिए, It is coming. और ये शुरुआत है। You can hide yourself as much as you want. और चाहे जितना छिपना चाहते छिप सकते हैं, But if you call yourself as a Christian, लेकिन अगर आप अपने आप को मसीही कहते हैं it is coming.
और ये आ रहे हैं, But you don't have to be afraid. लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। When persecution comes, जब ताड़नाएं आएंगे, when tribulation comes, जब ट्रिबुलेशन आएंगे आपके when जीवन trials में, and troubles come, जब बहुत सारे समस्याएं आएंगे आपके जीवन God में, has promised परमेश्वर ने वादा करता है that He will be always be with कि you, आप वो हमेशा आपके साथ रहेंगे and He will give you the strength, और वो आपको सामर्थ को देगा He will give you the victory, और वो आपको विजेता को देगा He will give you the power, और वो आपको शक्ति को देगा and He will not put you ashamed. और वो आपको लज्जित नहीं होने देगा। Are you ashamed of Christ this morning? क्या इस समय आप यीशु मसीह के लिए लज्जित Are हैं? you willing to openly stand up and say, I am a Bible believing child of God? क्या पूरे खुलेआम खड़े हो क्या बोल सकते कि मैं परमेश्वर का संतान हूँ, परमेश्वर का वचन को विश्वास I करने वाला don't हूँ? care what people think about me. मुझे कोई परवाह नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, What bothers me is whether Jesus is pleased about me or not. लेकिन मेरे बारे में ये कि यीशु मसीह मेरे से प्रसन्न है कि नहीं है। When we read in the book of Acts chapter 5, जब हम प्रेरित के वचन 5 में हम जब पढ़ते हैं, we read that the apostles were told not to preach the Lord Jesus और हम यहाँ Christ. पर देखते हैं कि प्रेरितों को कहा गया कि ताकि उन लोग यीशु मसीह के बारे में प्रचार ना करें। They were put in prison and told not to preach the word of उन God. लोगों को जेल में डाला गया है क्योंकि उन लोगों को कहा गया कि यीशु मसीह के बारे में प्रचार नहीं करना है। Verse number 18, Acts chapter 5, जहाँ हम प्रेरितों के काम अध्याय 5 वचन 18 में जहाँ पढ़ते हैं, the Bible says, बाइबल कहती है, and laid their hands on the apostles and put them in the common prison. और लिखा है और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। What will happen tomorrow if you are put in prison? कल को क्या होगा अगर आपको जेल में डाला जाएगा? Don't give me an answer, मुझे उत्तर मत देना, because 50% of you might lie to me this क्योंकि morning. शायद 50% शायद आप मुझसे झूठ कहेंगे, Or you might just give an answer for the sake of giving. शायद केवल आपको देना है बोल के आपको शायद आप जवाब दे सकते Or हैं, maybe all of you will give me the true answer this morning. या फिर सभी लोग शायद मुझे सही आंसर को देंगे। And maybe I'm wrong and you might all say, I truly will fight for the gospel. शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन आप कह सकते हैं कि मैं हाँ परमेश्वर के लिए मैं लड़ना चाहता हूँ। And you may say, if I'm in the prison, I will still stand up for Christ. शायद कहेंगे कि अगर मैं जेल में हूँ फिर भी मैं यीशु मसीह के लिए खड़े रहूंगा। This morning, what God is expecting from you is that you fight the good fight of faith. और आज के समय यीशु यही आशा कर रहे हैं कि आप अच्छे लड़ाई को लड़ें। This morning, God wants you to be bold and courageous. और आज सुबह में परमेश्वर आपको चाहता है कि ताकि आप शक्तिशाली बने और पूरे साहसी बने। The Bible says the apostles were laid inside the prison. बाइबल में लिखा है कि उन लोगों को बंदी गृह में बंद किया गया है। Remember, these were true Christians. और याद रखो कि ये सही मसीह हैं, These were the early Christians. और ये शुरुआत के मसीह हैं, This is Christian life. और यही मसीही जीवन है। Christian life is not a bed of roses. और ये जो मसीह जीवन है ऐसा नहीं कि बिस्तर में बहुत सारे गुलाबे हैं, Christian life is not hiding yourself और मसीह जीवन ऐसा नहीं कि आप छिप जाएं to protect yourself. अपने आप को रक्षा करने के लिए, Christian life is hiding yourself to magnify Christ. और मसीह जीवन ऐसा है कि ताकि हम यीशु में छिप सके और यीशु को बड़ा दिखा सके। It is about magnifying Jesus और ये Christ. केवल इसके बारे में ताकि हम यीशु को बड़ा दिखा सके। This morning, Noel prayed, और आज के समय नोएल ने प्रार्थना किया, Oh God, हे परमेश्वर, hide pastor behind the cross और हमारे पासवान को आप क्रूस के अधीन में छिपा के so रखो that Jesus Christ may be glorified. ताकि यीशु मसीह को महिमा मिले। And that is the prayer that every Christian should have. और वही प्रार्थना हम सबों को करना है। Are we getting angry if we don't get to present ourselves openly? शायद हम गुस्सा में हैं, शायद अगर आप अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाते खुलेआम। Are we willing to magnify Christ and hide ourselves? क्या हम परमेश्वर को महिमा देकर अपने आप को हम छिपाते हैं? Do we feel so small if we are rejected क्या by the world? अगर हमें नकारा जाता है क्या हम अपने आप को छोटा महसूस करते हैं? The early apostles, the early Christians were put behind the bars because of the gospel. और शुरुआत के जो मसीह उन लोग को बंदी गृह में छिपाया गया है। No matter what the world tells you, चाहे संसार जो कुछ भी कहे, the Bible says बाइबल कहती है that they were put behind the bars. उन लोग को जेल में डाला गया But the है। next verse says और जो अगला वचन कहता है, the angel is saying something. और यहाँ पर जो स्वर्गदूत है उन लोग कुछ कह रहे हैं यहाँ Oh, पर। you may say, but hey, come on, we got to be on the, obey the law. आप शायद कह सकते हैं हमें न्याय को पालन करना है, We all should obey the law. और हम सबों को न्याय को कानून को पालन As करना long है as they don't cross the borderline. जब तक उन लोग सीमा को पार ना करें। No one can tell me when I should worship and when I should not worship. और मुझे कोई नहीं कह सकता कि मुझे कब आराधना करना है कब नहीं करना है। I will worship, I will obey the law. और मैं कानून को पालन करूंगा। I am a responsible citizen of this country. और ये जो इस देश का मैं एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ, I try my best to obey the law. और मैं अपना पूरा बेस्ट देता हूँ पालन करने के I लिए, pay my taxes. और टैक्स में पे करता हूँ, I try to raise up my kids according to the law of the और country. कानून के हिसाब से मैं अपने बच्चों को बढ़ाता हूँ। But nobody can tell me when I should worship and when I should not worship. लेकिन मुझे कोई नहीं कह सकता कि मुझे कब आराधना करना है कब नहीं करना है। Nobody can tell me whom I should worship
and whom I should मुझे not कोई worship. नहीं कह सकता कि मुझे किसकी आराधना करना है और कैसे करना है, For me, God is important. क्योंकि मेरे लिए परमेश्वर बहुत ही मुख्य Now, when है। I say God, I'm not talking about any God. I'm talking about the Lord Jesus जब मैं Christ. परमेश्वर कह रहा हूँ, मैं किसी परमेश्वर के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यीशु मसीह के बारे में The कह रहा Bible says in verse number 19, हूँ। और बाइबल वचन 19 में कहता है, but the angel of the Lord परंतु स्वर्गदूत, by night opened the prison doors परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने and brought them forth and said, बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, the Lord has put the apostles behind the bars. और जो परमेश्वर ने प्रेरितों को जेल के अंदर डाल दिया है, But the God is saying something to these apostles. लेकिन परमेश्वर इस समय इस प्रेरितों को कुछ कह रहा है। In verse number 20, और वचन 20 में the Lord is saying, और परमेश्वर कह रहा है, go, जाओ go. जाओ। Everybody say सभी go. लोग कहेंगे जाओ, Go, जाओ, stand खड़े रहो and speak. मंदिर के खड़े होकर और तुम वचन बोलो, सुनाओ। Go, जाओ, stand खड़े हो जाओ and speak. और बोलो। May you repeat after me. Go, stand and speak. Everybody go, stand and speak. Go, stand and speak. Now this is what God is saying. और वही परमेश्वर हमसे कह रहा है। The Lord said, और जो परमेश्वर कहता है, inside the bar, और जेल के अंदर, inside the prison, और जेल के अंदर no more preaching और प्रचार नहीं करना है about Jesus Christ. यीशु मसीह के बारे में। Shut up, चुपचाप रहो, sit down, बैठो get out. और यहाँ से बाहर हो जाओ। But the Lord says, लेकिन परमेश्वर कहता है, go, जाओ, stand खड़े हो जाओ and speak. और बताओ। Go, जाओ, stand खड़े रहो and speak. और बोलो। Go, जाओ, stand खड़े रहो and speak. और बोलो। Go, जाओ, stand खड़े रहो and speak. और बोलो। Go, जाओ, stand खड़े रहो and speak. और बोलो। That is what the Lord is saying. वही परमेश्वर हमसे कह रहा है। We are supposed to obey the law. और हमें कानून का पालन करना But है। when they cross the line, लेकिन अगर जो लोग सीमा पार करते हैं, go, तुम जाओ, stand खड़े हो जाओ and speak. और बोलो। Go, जाओ, stand खड़े हो जाओ and speak. और बोलो। Go, जाओ, stand खड़े हो जाओ and speak. और बोलो। Hallelujah. हालेलुया। That is what God is saying. वही परमेश्वर हमसे कह रहा है। Oh, my sentiments are hurt now. अरे मुझे ठेस पहुंचते हैं ये सब। Every person whose sentiments are being hurt should grow up to be a man. जिसको भी ठेस पहुंचता है उन लोगों को एक मर्द बनना होता है। Because if you want to stand up against Christians, क्योंकि अगर आप मसीह के विरुद्ध अगर आप खड़े रहेंगे, you better need to understand. आपको समझना है, We have a command from God. हमें परमेश्वर की ओर से आज्ञा है। Go, जाओ, stand खड़े होकर and speak. और बोलो। But I'm afraid. लेकिन मुझे डर लगता है। What will others think? और बाकी लोग मेरे बारे में क्या What will others सोचेंगे? say? और बाकी लोग क्या कहेंगे? What about my friends? और मेरे दोस्त लोग क्या What about my कहेंगे? neighbors? मेरे पड़ोसी क्या My कहेंगे? society? मेरे सोसाइटी के My लोग क्या कहेंगे? family? मेरे परिवार। Shut up! चुपचाप रहो। God says, परमेश्वर कहता है, Go, जाओ, stand खड़े हो and speak. और बोलो। He came from heaven to और the वो earth स्वर्ग से आया है 2000 and he साल पहले died for your sins और आपके पाप के लिए वो by मरा, shedding his precious अपने लहू blood, को बहाने के द्वारा was buried उसको गाड़ा गया and rose again. और वापस जी उठा He gave everything for you. और सब कुछ उसने आपके लिए And किया। now, और अभी He's saying to you, और वो आपसे कह रहा है, go, जाओ, stand खड़े हो जाओ and speak. और बोलो। Hallelujah. हालेलुया। Go, जाओ, stand खड़े हो and speak. और बोलो। Look at verse number 20. और वचन 20 देखो। Go, जाओ, stand खड़े हो and speak और लोगों को सुनाओ। in the temple और मंदिर में to the people लोगों को सुनाओ। all the words of this life. हर एक वचन की ये बातें All the words of this life. There's a और ये place here. जीवन की हर एक बातें। And so this is what God is saying. और वही परमेश्वर हमसे कह रहा है। Just because someone said not to worship God, ऐसा नहीं कि किसी ने आपसे कह दिया कि आराधना नहीं करना है you आपको। can't stop us from worshiping God. वो आप हमें मना नहीं कर सकते यीशु की आराधना God करने is से। telling us to go, परमेश्वर हमसे कह रहा है कि तुम जाओ, खड़े हो जाओ stand and speak. और बोलो। Go, जाओ, stand खड़े हो and speak. और बोलो। Not just inside the church, केवल कलीसिया के अंदर नहीं, but in the temple. लेकिन मंदिर में। Not only in the temple, केवल मंदिर में नहीं, but in the market. लेकिन मार्केट में। Not only in the market. केवल मार्केट में If नहीं, tomorrow you are in the prison, जब आप जेल में होंगे, you need to go in the prison. आपको जेल में जाना होगा If they're going to take you to the prison, और उन लोग आपको जेल में लेके जाएंगे don't fight for it. और उसके लिए आप लड़ो मत।
Obey the law. और कानून का पालन करो। So we obey the law by allowing them to do what according to the law they have to do. और हम कानून को पालन करते हैं क्योंकि उन लोग जो हमें कानून को देते हैं उसको हम पालन करते हैं। And we obey God by continuing to preach the gospel. और हम परमेश्वर की पालन करते हैं लगातार प्रचार करने के द्वारा। We will go into the prison. और हम जेल के अंदर जाएंगे। And we will go. और हम जाएंगे। We will stand. और हम खड़े होंगे। And we will speak. और हम बोलेंगे। Not just in the market, केवल बाजार में नहीं, but also in the prison. लेकिन जेल में भी हम बोलेंगे। Not just in the temple, केवल मंदिर में नहीं, but also in the church. लेकिन कलीसिया में भी। Few years back, we were passing out gospel tracts in Old Goa. कुछ साल पहले हम शुभ समाचार के पर्चियों को हम बांट रहे थे ओल्ड गोवा में। And so while we were distributing gospel tract, 4 or 3 of my students along with me and me, we were put behind the bar. जब हम बांट रहे थे तो हमें 4-5 हम सबों को मिल करके हमें जेल के अंदर डाला गया है। And they said you cannot do these things. और उन्होंने हमसे कहा कि तुम ये नहीं कर सकते हो। So in Old Goa prison they locked us up inside the prison. तो ओल्ड गोवा के जेल में हमें अंदर डाला गया है। For preaching the gospel. शुभ समाचार प्रचार For करने के passing लिए। out the gospel गॉस्पेल tracts. ट्रैक्ट बांटने के लिए। There was one girl with us that time. और एक लड़की थी हमारे साथ। And she joined us in passing out gospel और वो tracts. हमारे साथ वो ज्वाइन हुई थी गॉस्पेल ट्रैक्ट्स बांटने में। And she was, she used to come to our church. और वो हमारे कलीसिया को आती थी। But when the police all joined together and came in front, जब पुलिस हमारे सामने आई, she got scared. उसको डर लगा। She started crying. और वो रोने लगी। And she didn't know what to do. उसको मालूम नहीं कि उसको क्या करना है इस Because समय। they would have put her also in the jail. क्योंकि पुलिस उन लोगों को भी जेल में डाल सकते So हैं। at the time I wanted to save her. तो उस समय मैं उसको बचाना चाहता था। I didn't know what to do. और मुझे नहीं मालूम मैं क्या करूं इस समय। I looked at the PI और पीआई को मैंने देखा। and I said to him, और मैंने उसको कहा, I don't know this girl. मुझे मालूम नहीं ये लड़की कौन है। I don't know why she's here with us. मुझे नहीं मालूम कि ये हमारे साथ क्यों है यहाँ पर। And she was not with us. और वो हमारे साथ नहीं है। And she looked at me. और उसने मेरे ओर देखी। I looked at her. और मैंने उसकी ओर देखा। The PI looked at me. और पीआई ने मेरे ओर देखा। And he looked at her. और उसने उसके ऊपर देखा। And I said, sir, I don't know her. और मैंने कहा कि सर मुझे नहीं मालूम वो कौन है। So the PI sent her home. और पीआई ने उसको घर भेज दिया। I lied so that she can be escaped. मैंने झूठ कहा ताकि वो बच सके। But 4 of us, all the boys, all the men, we were put in the prison. लेकिन हम जो 4 जो व्यक्ति थे हम सबों को जेल के अंदर डाला And गया। while in the prison, और जब जेल में हम जब थे, we knelt down. हमने घुटने में आया। We held our hands high. और हम हाथों के हाथ पकड़कर हम And we began to sing praises to God. और हम प्रभु की महिमा को गाने लगे। And we began to pray. और हम प्रार्थना करने And we लगे। began to preach. और हम प्रचार करने And लगे। the police inspectors, they were sitting there outside the bar. और पुलिस के वहां पर उन लोग बाहर बैठे हुए थे। They began to listen to us singing. और हमारे गीतों को सुनने लगे उन They लोग। began to listen to us praying. और हमारे प्रार्थना को वो सुनने लगे। They began to listen to the gospel. और गॉस्पेल को लोग सुनने लगे। We were not ashamed. हम लज्जित नहीं थे। We were not afraid. हम डरे नहीं थे। We just knew लेकिन हम जानते थे that God gave us this great opportunity क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस अपॉर्चुनिटी को दिया है for the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के लिए। I got hurt today. और मुझे आज हर्ट हुआ है। The message was so hurt today. और संदेश बहुत ही मतलब ऐसा था कि मुझे हर्ट किया है। The pastor did not listen to me. और पासवान ने मेरा नहीं सुना। And you think you can take a gunshot for Christ? क्या आपको लगता है कि आप परमेश्वर के लिए एक गन शॉट ले सकते If a हैं? message can hurt you today, अगर आज के संदेश आपको हर्ट कर सकता you है, think you can stand up for Christ tomorrow when the क्या- world will come against you? क्या आपको लगता है जब संसार आपके खिलाफ हो जाएंगे आप उस समय परमेश्वर के लिए खड़े रह सकते हैं? When you will be put behind the bars, जब आपको जेल में डाला जाएगा, God is saying, परमेश्वर कहता है go, तुम जाओ, stand, खड़े हो and speak. और बोलो, Speak the word of God. परमेश्वर के वचन को बोलो। Not about you. ये आपके विषय में नहीं है। We are dead. हम मर चुके हैं He is alive. और वो जीवित हैं। Lord, this the शर्म लग रही है। शर्म आ रही मुझे। You are dead. आप मर चुके हैं He is alive in you. और वो जीवित है आप में। For me to live is Christ. मेरे लिए जीना मसीह है And to die is gain. और मरना मेरे लिए लाभ It's है। no longer I who और live. ये मैं अभी और नहीं जीता हूँ It is Christ who liveth in me. और ये मसीह है जो मेरे में If जीता you है। understand what it means, अगर आप ये मतलब को समझते हैं, how many of you have seen a dead body? कितने लोगों ने मरे हुए बॉडी को देखा है? Anybody here? क्या कोई यहाँ पर देखा है Some people. मरे हुए शरीर को? Others never seen anybody dead. शायद किसी ने और नहीं देखा रहेगा। But when you look at a dead body, लेकिन जब मरे हुए शरीर को देखते हैं some people will go and cry. और कोई लोग जा करके रोते हैं। These fellows will never cry when they are alive. जब वो जीवित रहते हैं वो व्यक्ति कभी नहीं रोते हैं But उसके बारे after में। the death, लेकिन मरने के बाद oh, wake up. उठ जाओ, Why are you gone? क्यों तुम जा चुके हो And हमको they छोड़ would के? even tell God, और उस समय परमेश्वर को भी कहते oh हो God,
I wish you took me and left this person back. हे परमेश्वर, शायद आप मुझे ले जाने से अच्छा होता। You better be careful what you are praying. आपको सावधान होना है, आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं। Because if God answers your prayer, you will regret all your life. क्योंकि अगर आप प्रार्थना को परमेश्वर सुनते हैं तो आप हमेशा पछताओगे। Oh, so good this person was. अरे ये व्यक्ति बहुत ही अच्छा था। When that person was alive, no one spoke good about that और person. जो व्यक्ति वो जब जीवित था, वो कोई भी किसी ने उसके बारे में नहीं बोला And अच्छा। some of them will go to such an extreme. और शायद बहुत से लोग उस समय उस परिस्थिति में जाएंगे They'll hold that dead body. और वो मरे हुए शरीर को पकड़ेंगे उन लोग They will shake the dead body. और वो शरीर को हिला देंगे उन लोग They say, wake और up! उठ जाओ, Wake up! उठ जाओ, Why you left me and went? क्यों मुझे छोड़ के चले गए हो। Sometime I look at that और बहुत सारे समय में उसको देखता हूँ and I don't know to laugh or to cry. और मुझे वो समय मालूम नहीं रहता कि मैं हंसूं या फिर रोऊं, Because the greatest hypocrites are found on the dead bodies. क्योंकि बहुत से दिखावटी जो होते हैं उन लोग को मरे हुए शरीर में दिखाया The जाता day है of funeral. और मरे हुए दिन में Biggest hypocrites on the day of funeral. और उस समय उस दिन में जब गारे जाने के समय में उन लोग अपने आप को दिखाते हैं When they दिखावटी। are alive, no one speak good about them. जब उन लोग जीवित रहते हैं कोई भी वो अच्छा नहीं बोलते उन लोग के बारे After में, they're dead. और मरने के बाद Oh, you were so good. और वो व्यक्ति बहुत ही अच्छा था, Why did you leave and go? क्यों मुझे छोड़ के चले गए So soon. बहुत ही जल्दी। Wake up, come back. उठ जाओ और वापस आ जाओ। Did the dead body anytime come back? क्या मरे हुए शरीर कभी वापस आया? It's dead. वो मर चुका है And the Bible says you are dead. और बाइबल कहते हैं कि तुम मर चुके हो। So don't be ashamed about anything. तो कुछ विषय को लेकर आप लज्जित मत होइए। Don't be worried about what the world will say. जो संसार कहेंगे उसके बारे में आप चिंतित मत होइए। It's Christ who liveth in you. और ये मसीह है जो मेरे में जीता है And he has done everything for you. और वो आपके लिए सब कुछ कर चुके हैं। And God is saying, go और परमेश्वर कहता है कि तुम जाओ, Stand. खड़े हो and speak और बोलो in the temple to the people और मंदिर में ये बातें तुम सुनाओ all the words of this life. और हर एक जीवन की सब बातें। In verse number 21, और वचन 21 में, and when they heard that, और वे सुनकर, who these apostles, when they heard that, और जो प्रेरित सुनकर they entered into the temple भीड़ होते ही मंदिर में early in जाकर the morning और बहुत ही भोर समय में and taught. और उपदेश देने लगे। Early in the morning, और भोर समय the में apostles went to the temple और उन लोग मंदिर को गए, and प्रेरित they लोग, began to teach the word of और उन God. लोग वचन को सिखाने लगे। But the high priest came. तब महायाजक आए, Now these are religious people. और ये बहुत ही धर्मी लोग हैं। And they that were with him and called the council together तब महायाजक और उसके साथियों ने आकर and all the synod of the children of Israel महासभा को और इस्राएलों के सब and पुनरियों sent to को the prison to have them brought. इकट्ठा किया और बंदी गृह में कहला भेजा कि So उन्हें the high लाए। priest and all the counselors, they say, go bring all these apostles from the prison, bring them out. तो ये महायाजक और उपदेशक लोग उन लोगों को कहने लगे, हरे प्रेरितों को बाहर लेकर आओ। So the soldiers ran to the prison. तो यहाँ के जो सोल्जर्स लोग प्रिजन को गए, Verse number 22. और वचन 21, And when the officers came और जब महायाजक और साथियों ने आकर and found them not in the prison, बंदी गृह में ना मिला, they returned and told, उन लोग वापस जाकर कहा, saying, the prison truly found we shut with all safety, हमने बंदी गृह को कोड़ी चौकट से बंद किया हुआ and the keeper standing without before the doors, but when we opened, we found no man within. और पहरे वालों को बाहर द्वार में खड़े हुए पाया, परंतु जब खोला तो भीतर कोई ना मिला। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। You see, the world may put you behind the bars. देखो संसार आपको शायद जेल के अंदर डाल सकता है। And today you might feel like you are in some kind of chains of your life. शायद इस समय आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि शायद आपको किसी ने जंजीर से बांध कर रखा है। But if you are committed in loving, serving and living for the Lord Jesus Christ, लेकिन अगर आप यीशु मसीह की सेवा में उसको प्यार करने में अगर आप जुड़ चुके हैं, all your chains will be broken right now. आपके हर एक जंजीर टूट सकता है इस And समय, He is able to make you free. और वो आपको छुटकारा दिला सकता है। Maybe it's a chain of finance. शायद आपके ऐसा जंजीर है जहाँ पे आपके धन के बारे में हो, Maybe family issues. शायद परिवार के समस्या है, Maybe marriage issues. शायद शादी के समस्या है, Maybe education. शायद आपको पढ़ाई लिखाई के बारे में समस्या Maybe है, problem with the neighbors. शायद आसपास के पड़ोस लोगों से समस्या है। God is able to break every chain. परमेश्वर हर एक जंजीर को तो तोड़ सकता है। Here the prison is closed. यहाँ पर जो द्वार है वो बंद है, There's a lock in the prison. और वो जेल में लोग हैं, The soldiers are outside the prison. और जो सेना है उन लोग बाहर खड़े हुए हैं, But the apostles are out of the prison. लेकिन जो प्रेरित हैं उन लोग जेल के बाहर हैं, And they are preaching in the temple. और उन लोग मंदिर में प्रचार कर रहे हैं। So these people come and tell them that everything is locked, but these people are not there. और लोग कहने लगे कि सब कुछ लोग हैं लेकिन ये लोग यहाँ पर अंदर नहीं है। Now when the high priest and the captain of the temple
temple and the chief priests heard these things, जब उन्होंने ये सब प्रधान महायाजकों ने ये सब सुना, सरदार लोगों ने सुना, they doubted of them whereunto this would grow. और उनके विषय में भारी चिंता पर कि उन्हें ये क्या हुआ. Verse number 25, वचन 25 में, then came one and told them, saying, इतने में ही किसी ने आकर उन्हें बताया, behold, the men whom you put in prison are standing in the temple देखो जिन्हें तुमने बंदी गृह में बंद रखा था, वे मनुष्य and teaching the people. वे मनुष्य मंदिर में खड़े हुए लोगों को उपदेश दे रहे हैं. Go, जाओ, stand, खड़े हो and speak. और बोलो. This is exactly what they are doing. और वही उन लोग कर रहे हैं. They went उन लोगों ने गया and standing in the temple और मंदिर में खड़े होकर began to teach the people. उन्होंने लोगों को शिक्षा को देने My लगा. dear friend, मेरे प्रियो, the law put them in the prison जो कानून है उन लोगों को जेल में डाला है and told them not to preach. और उन लोगों को कहा गया कि तुम लोग प्रचार नहीं करना है. But these people, लेकिन ये जो लोग हैं, they said, we're going to obey God anyway. और उन्होंने कहा कि हम परमेश्वर की पालन करेंगे. You want to put us in the prison? आप शायद हमें जेल में डालना चाहते हैं, You can put us in the prison. आप हमें जेल में डाल सकते हैं. We will obey the law of the country और हम ही उस कंट्री के हम कानून को पालन by करेंगे not fighting against the law. और कानून के खिलाफ नहीं लड़ने But से. at the same time, लेकिन उसी समय we में want to obey God. हम परमेश्वर का पालन करना So we चाहते will हैं continue to preach. और हम लगातार प्रचार करेंगे. You can put us in the prison. आप हमें शायद जेल में डाल सकते We हैं will preach from the prison. और हम जेल से ही हम प्रचार And करेंगे. if you leave us out, अगर आप हमें छोड़ देंगे बाहर we will preach from out. और हम बाहर से होकर प्रचार But we are करेंगे, not going to fight against you. लेकिन हम आपके खिलाफ नहीं लड़ेंगे. We will obey what you do. जो कुछ भी आप करते हैं हम उसका But पालन करेंगे. remember, लेकिन याद रखो, We will obey God also. और हम परमेश्वर का भी पालन करेंगे. And so that is what we need to do, dear और friend. वही हमें करना चाहिए हमारे प्रियो. We should not disobey God. हमें परमेश्वर के खिलाफ नहीं जाना है We should not disobey the law. और हमें जो कानून है उसका भी खिलाफ नहीं जाना So है. if the law is telling us अगर कानून हमें ये कह रहा है that if you worship God will put you in the prison, अगर तुम परमेश्वर की आराधना करते हो तुम्हें जेल में डाला जाएगा, then you said, okay, here we are, you can put us in the prison. तो उस समय आप कहेंगे कि हाँ यहाँ पर हमें डाल दो जेल के अंदर. That's called obedience to the law. उसको कहते हैं आज्ञा का पालन करना कानून But then we के ऊपर. ought to obey God. लेकिन हमें परमेश्वर का भी पालन करना So उचित we है. will worship the Lord anyway. तो हम जो कुछ भी हो हम परमेश्वर की आराधना करेंगे We will preach the word of God anyway. और जो कुछ भी हम प्रचार करेंगे. I do not want Grace and Truth Baptist Church to be just like any Laodicean church. और मैं नहीं चाहूंगा कि ग्रेस एंड ट्रूथ बैप्टिस्ट चर्च किसी और अन्य चर्च के तरह हो. I don't want any man in this church to be boys anymore. लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि हमारे जो कलीसिया के जो मर्द लोग हैं वो बच्चा जैसा बने. My desire as a pastor of this church मेरी जो इच्छा है पासवान के होने के नाते इस कलीसिया के लिए to raise up every boy to become the man of God. हर एक बच्चों को ऐसा बड़ा करना है ताकि उन लोग परमेश्वर की महिमा के लिए एक मर्द बन सके. And to stir up every man to be the soldiers of the Lord Jesus और हर एक Christ. जो मर्द है उन लोग यीशु मसीह की सेना ताकि बन सके, काबिल बन सके. Every woman in this church और इस कलीसिया के हर एक जो महिलाएं हैं should be a woman of God. और वो ऐसा महिला होना चाहिए जो परमेश्वर का हो Bold and courageous. और उन लोग पूरे साहस से और पूरे सामर्थ्य Not afraid. और उन लोग डरे नहीं. Not afraid to die for Christ. परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं डरना है. Not afraid to suffer for Christ. परमेश्वर की महिमा के लिए कष्ट भुगतने के लिए डरना नहीं है. We're going to be worshiping God and obeying God. और हमें लगातार प्रभु की आराधना करना है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना है. I really don't know what's going on in your mind right now. मुझे नहीं मालूम कि मन में इस समय क्या चल रहा है. I don't know if the Lord is stirring your heart मुझे नहीं मालूम शायद इस समय परमेश्वर आपके हृदय को उठा रहा है or you're getting scared. और शायद आप डर रहे हैं इस समय. My desire is not to scare you. मेरी जो इच्छा है आपको डराने के लिए नहीं है. My desire this morning is to really fan the flame in you. और मेरी जो इच्छा है ताकि आग को ताकि और भी ज्यादा उसको जला सके, To make you more courageous and bold in the Lord. ताकि आपको और भी ज्यादा साहस से और भी ज्यादा मजबूत बना सके परमेश्वर में. Now look at verse number 26. और वचन 26 में देखो. So while these people were preaching in the temple and teaching, और जब ये लोग मंदिर में प्रचार करते सिखा रहे थे इस संदेश को, then when the captain with the officers लिखा है तब सरदार and brought them without violence, for they feared the people lest they should have been stoned. तब सरदार यादों के साथ जाकर उन्हें ले आया, परंतु बलपूर्वक नहीं, क्योंकि वे लोगों से डरते थे कि हम
पर पत्थरवार ना करें। Let me tell you this, dear friends. और मुझे ये कहने दो मेरे प्रियो, Just because a bunch of people are against you for preaching the gospel, केवल ऐसा ना कि जो कुछ लोग आपके खिलाफ है, जो आप प्रचार करते हैं उसके खिलाफ, that doesn't mean that you will have no support from the world. इसका मतलब यही नहीं कि आपको संसार की ओर से सपोर्ट नहीं मिलेंगे। God will raise up more support for you. परमेश्वर ऐसे लोगों को और भी तक उठाएंगे आपके लिए, सपोर्ट करने के लिए। And recently, like somebody took my 15-second video and made it viral. और कुछ दिन पहले 15 सेकंड का वीडियो लेकर के वायरल किया है। And they put it on many medias, many news channels. और बहुत से न्यूज चैनल में, मीडिया में उन्होंने डाला है। And it was all over the Facebook. और वो फेसबुक में भी था, बहुत सारी जगहों में। And what I saw on the Facebook as I went through those videos where I was tagged and where people were sharing those links to me. और उस वीडियो में जाकर के मैंने देखा है वहां पर। I was greatly encouraged. और मैं बहुत ही उत्साहित हुआ। Because there were many who were writing against Christians and believers and in general targeting me. क्योंकि उनमें से बहुत से जैसे लोग पहले मुझे टारगेट कर रहे थे, मेरे खिलाफ लिख रहे थे, जो मैं सेवकाई करता हूं उसके खिलाफ लिख रहे थे। But I read all the comments. लेकिन हर एक जो कमेंट्स है उसको मैंने पढ़ा। And I was reading. और मैं पढ़ रहा था उस समय। More than the people that attacked me. और जो लोग मुझे अटैक कर रहे थे, There were many more people who were supporting me. और उससे भी अधिक जो लोग मुझे सपोर्ट भी कर रहे थे। There were many more people writing in favor of me. और हर एक लोग मेरे अच्छे के लिए वो लोग लिख रहे थे। Not just in Goa. केवल गोवा में नहीं, People from all over the world were commenting in favor of me. और पूरे संसार में जितने सारे बहुत सारे लोग हैं, उन लोग मेरे और लिख रहे थे। These are people I don't even know. और ये जो लोग हैं मुझे उन लोगों के बारे में नहीं मालूम है। And all of them were not only believers. और उन लोग में से बहुत से लोग विश्वासी भी नहीं है। Many of them were unbelievers. और उनमें से बहुत से लोग विश्वासी हैं। There were Hindus, Muslims and Catholics writing in favor of me and supporting me. और मेरे बारे में लोग लिख रहे थे, हिंदू, मुसलमान, कैथलिक, उन लोग मेरे लिए लिख रहे थे उस समय। We don't have to be afraid. हमें डरने की जरूरत नहीं मेरे। We are not alone. हम अकेले नहीं हैं। God will raise up more support for you if you stand up for the Lord Jesus अगर आप Christ. यीशु के लिए खड़े रहते हैं, परमेश्वर और भी लोगों को उठाएंगे आपके लिए। Give a clap offering to the Lord Jesus ताली बजाकर Christ. महिमा देंगे हम। Don't be ashamed. आप लज्जित मत होइए। I was greatly encouraged और मुझे बहुत ही उत्साहित मिला। to read about people writing in favor. और लोग मेरे बारे में लिख रहे थे, उसको रीड कर कर मैंने बहुत ही अच्छा लगा। And I said, Lord, these people, I don't even know them. और मैंने कहा, प्रभु मैं इन लोगों को जानता भी नहीं हूँ। And they are writing in favor of me. और लोग मेरे बारे में अच्छा लिख रहे हैं। And there were many who just knew me through the internet, through the YouTube and all these things. और उनमें से बहुत से लोग मुझे जानते थे YouTube के माध्यम से। And there were many who never heard of me. और उनमें से बहुत से लोग हैं जो मेरे बारे में जानते ही नहीं हैं। But God was raising up support all over the world. लेकिन पूरे संसार में परमेश्वर ने सपोर्ट को खड़ा किया मेरे बारे में, मेरे लिए। Amen. आमीन। Don't be ashamed. आप लज्जित मत होइए मेरे The प्रिय। Lord Jesus said, यीशु मसीह कहता है, I will never forsake you. मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा I नहीं, will never leave you. और मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, I will stand with you. और मैं तुम्हारे साथ खड़े रहूंगा, I will be with you. मैं तुम्हारे साथ बने रहूंगा। We need to draw encouragement from such. हमें उस प्रकार के संदेश से हमें उत्साहित को लेना चाहिए। Verse number 28. वचन 28 में देखो, Saying, did not we straightly command you that you should not teach in this name? And behold, you have filled Jerusalem with your doctrine and intend to bring this man's blood upon us. उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, Isn't that beautiful? क्या वो बहुत ही खूबसूरत है? Rebellious apostles. जो रिबेलियस, जो एपोस्टल्स है, जो प्रेरित हैं, Disobedient apostles. जो आज्ञा को पालन नहीं करते हैं, ऐसा प्रेरित। Kaido munta, wo worship korina ka ani wo church soloita. Right? Lot of Christians in Goa. बहुत सारे गोवा में ऐसे मसीह लोग हैं। Law is telling not to have worship service. This guy is running his church. और ये व्यक्ति कह रहा है कि तुम्हें कलीसिया को चलाना है, और ये कलीसिया को चला रहे हैं। Look at us. We worship the Lord. देखो हमें, देखो हम कानून का पालन करते हैं। If you are not worshiping God, then you are worshiping the law. अगर आप यीशु की आराधना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? कानून का आराधना कर रहे हैं। No, I'm not telling about you, those who did not come to church during lockdown. I'm not talking about you. मैं आपके बारे में नहीं कह रहा जो लोग लॉकडाउन के समय में कलीसिया को नहीं आया। I'm talking about people who are accusing us for running the church. और मैं उन लोग के बारे में कह रहा हूँ जो हमें दोषी ठहरा था क्योंकि हम कलीसिया को लगातार चला I'm रहे in हैं। all favor of the people to take absolute precaution.
I am in absolute favor of people to take absolute precautions. और जो लोग ये बातों को कहे मैं उन लोग के और हूँ, उन लोग के साथ हूँ और उन लोग को मैं बहुत ही बधाई देता हूँ If they are taking care of themselves. और अगर उन लोग अपने आप को उन लोग टेक केयर कर रहे हैं, We don't think that you are better Christian and we are lower Christian. हम ऐसा नहीं सोचते कि उन लोग हमसे अधिक अच्छे हैं, Nor we think that we are better than you. और हम ये भी नहीं सोचते कि हम आपसे अधिक अच्छे हैं. But I'm just saying about those who say this guy is disobeying the law by running the church. और लेकिन मैं उन लोग के बारे में कह रहा हूँ जिन्होंने कहा कि हम आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हैं और कलीसिया को लगातार हम चला रहे हैं. In verse number 28, वचन 28 में they are saying, और उन लोग कहते हैं, we told you not to preach in the name of Jesus. हमने कहा कि यीशु मसीह के नाम को लेकर प्रचार नहीं करना है. We gave you the warning not to preach about Jesus. और हमने तुम्हें सावधान किया था कि यीशु के बारे में प्रचार ना करें. And you people are filling this land with the doctrine of Jesus. और ये तुम जमीन को तुम क्या कर रहे हो? यीशु मसीह की शिक्षाओं से तुम पूरा कर रहे हो. If you ever want to have a good testimony, that is a good testimony. अगर आप अच्छा गवाही पाना चाहते हैं तो ये अच्छा गवाही है. That the unbelievers should look at you and say, this guy is disobedient, he is worshiping Jesus. और ये अविश्वासी लोगों को अविश्वासी लोग आपको देखकर कहना चाहिए कि ये लोग यीशु की आराधना कर रहे हैं. That is a good testimony. और वो एक अच्छा गवाही है. These people are rebellious people. They are disobeying the law by worshiping Jesus. और इन लोग ऐसा बहुत ही उन लोग आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे और उन लोग यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं. That is a good testimony. और एक अच्छा गवाही है. The unbelievers should know that even if they cut you, blood will flow by singing, there is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's vein. और अविश्वासी लोग जब आपको काटेंगे उन लोगों को दिखेंगे कि जो लहू आपसे आपके शरीर से बह रहा है. If they ever cut you, my dear friend, if the blood bleeds, gospel and Jesus should bleed from you. और अगर उन लोग आपको काटेंगे तो आपकी लहू से यीशु की शुभ समाचार निकलना चाहिए मेरे प्रियो. I am not in the favor of wasting time to make you Amul baby and Amul baby boy. और मैं ऐसा समय में नहीं गुजारूंगा जहां पर अमूल बेबी बॉय को मैं बनाऊं. I'm going to invest my every seconds of life. मेरे समय हर एक समय को मैं इन्वेस्ट करूंगा. To build you to become the soldiers of Christ. ताकि आप यीशु मसीह के अच्छा सिपाही बन सके. To become courageous and bold. ताकि पूरा साहसी और सामर्थ्यशाली बन सके. And not be afraid of tomorrow. और कल के लिए आप ना डरें. We know who holds tomorrow. क्योंकि हम जानते हैं कल को कौन होल्ड करके रखता है. We know that Jesus holds our future. क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे भविष्य को पकड़ के रखा है. We know what the Bible tells us about tomorrow. हम जानते हैं कि बाइबल क्या कहते हैं कल के बारे में. We know that this is the word of God. और हम जानते हैं ये परमेश्वर का वचन है. This is our hope. और ये हमारी आशा है. Our lamp and the light. और हमारी ज्योति है, हमारे दीपक है. I am not ashamed of the gospel. और मैं सुसमाचार को लेकर लज्जित नहीं हूँ. I don't care who tells me to stop about Jesus Christ. मुझे कोई परवाह नहीं कि कौन मुझे मना करता यीशु की आराधना करने से. Media tells me not to preach, I will continue to preach the word of God. अगर करते हैं फिर मैं प्रचार करूंगा. We are called to preach the word of God. और हमें कहा गया कि प्रचार करने के लिए. Even if it tells me not to preach about Jesus, I will preach the word of God. अगर आराधना मत करो फिर मैं करूंगा आराधना. I will obey the law. और मैं कानून का पालन करूंगा. I will obey everything. मैं सब कुछ पालन करूंगा. But my first priority लेकिन सबसे अधिक मुख्य बात यह is to worship the Lord Jesus Christ. यह है कि परमेश्वर की आराधना करने Is to exalt and magnify Jesus Christ. यीशु मसीह को बड़ा दिखाना है, महिमा देना And है. I'm not afraid of the gospel. और मैं सुसमाचार को लेकर लज्जित नहीं हूँ, डरे नहीं हूँ. And I know that our country is in all favor of worshiping Jesus Christ. और हम जानते हैं कि हमारे जो कंट्री है वो यीशु मसीह की आराधना को लेकर है. But right now what we see around is not looking in favor like that. लेकिन इस समय अगर हम चारों ओर देखते हैं तो उस प्रकार के नहीं दिखाई दे रहा है. We are seeing persecutions against Christians. हम देखते हैं कि मसीह के विरुद्ध बहुत से ताड़नाएं हैं. We are seeing Christians have been persecuted and tortured. और हम देखते हैं कि उन लोग को बहुत ही ठेस पहुंचा जाता है, उन लोग को ताड़नाएं दिया जाता We है are मसीहों seeing को. pastors have been beaten and paraded naked. और हम देखते हैं कि पासवान लोग को मारा जाता है, उन लोग को नंगा किया जाता है. Just about a year ago, a pastor and his wife and children in the land of UP were paraded naked for preaching the gospel of the Lord Jesus Christ. और हम देखते हैं एक साल पहले यूपी में पासवान को और उसके पत्नियों को उसके बच्चों को उन लोग नंगार करके उन लोग को खुलेआम उन लोग को छोड़ दिया है. Just 2 weeks back, a pastor was slapped by a fat woman. और 2 हफ्ते पहले एक मोटी औरत ने एक पासवान को थप्पड़ दिया है. And she held the neck of the pastor. और पासवान के गले को पकड़कर. This is what is happening to Christianity in India right now. और मसीह जीवन में वही हो रहा है हमारे भारत में. In Kandhamal district of Orissa,
people were burned alive and chopped alive. और उड़ीसा में क्या हो रहा है, लोगों को जला जा गया है जिंदा और लोगों को मारा गया है, काटा गया Christians है were persecuted. और मसीहों को ताड़ना दिया गया है Christians were tortured. और मसीह लोगों को बहुत ही कष्ट दिया गया है। And I've been to that place about 2 times. और वो जगह में मैंने 2 बार गया हुआ है। Churches have been burned and still that burning church is still there. और जो कलीसिया जो घर है उसको जलाया गया है, अभी भी बहुत सारे कलीसिया वहां पर I है। have met people who have lost their hands and lost their legs because of the persecution. और मैंने ऐसे बहुत से लोगों को मिला जिसका हाथ काटा गया है, ऐसे लोगों को मैंने मिला है। I have seen parents who lost their children during that persecution in Kandahar. और मैंने ऐसे माँ बाप को देखे जो अपने बच्चों को खो चुके हैं उस ताड़ना के समय में। Lot of Christians were tortured and persecuted for the gospel. और बहुत से मसीहों को ताड़ना दिया गया क्योंकि उन लोगों ने यीशु मसीह के प्रचार किया है। And my dear friend, that is happening in India today. और मेरे प्रियो ये भारत में हो रहा है इस समय, This is an absolute truth. और ये बहुत ही सच्चा है मेरे प्रियो। You need to stand up for the gospel. आपको शुभ समाचार के लिए खड़े होना है। Can I tell you something? क्या मैं आपको कुछ कह सकता हूँ इस If समय? believers in Goa are not going to take a stand for Christ, tomorrow you and I will become a next UP of Goa. और हम क्या होंगे कल को, अगर हमारे जो कलीसिया जो विश्वासी लोग गोवा में उन लोग अगर खड़े नहीं रहेंगे तो हम भी उस समय वैसा ही हो जाएंगे मेरे प्रियो। Can I tell you something? If believers in Goa will not stand up and preach the gospel today boldly, tomorrow we will have no voice anyway. कल आज के अगर समय में अगर विश्वासी लोग खड़े नहीं होंगे सच्चाई के लिए, कल को हमारे पास आवाज नहीं होंगी उठाने के लिए। We all need to stand up for Christ in Goa. हमें गोवा में परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े होना We है। cannot give our freedom away like that. हम हमारे जो स्वतंत्र को उसको हमें नहीं छोड़ना है मेरे प्रियो। Everybody should be bold. हर एक लोगों को साहसी बनना है Everybody should be courageous. और सबको साहसी बनना है। Everybody should stand up and preach the gospel. हर एक लोगों को खड़े होकर प्रचार करना है, Not be afraid. डरना नहीं है Be courageous. और बहुत ही साहसी बनो Be bold. और साहसी बनो। तुम What are लोग they going to do? कहां पर हम जा रहे हैं What are they going to do? और आप लोग क्या करने वाले हैं? More and more they might put you behind the bars. ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, आपको जेल के अंदर डाल सकता है। And if somebody gives some money in the night, you may get some फुकट का हवालात. शायद आप अगर कोई पैसा देंगे तो आपको शायद मार भी पड़ेगा In the night. रात को। But they cannot do anything more than that. उससे अधिक उन लोग कुछ नहीं कर सकते And हैं। if they kill you, शायद उन लोग आपको मार सकते हैं। the next second you are in heaven in the presence of God. उसी समय आप कहां पर होंगे? यीशु मसीह की जगह में होंगे आप। As a Christian, you have nothing to lose. एक मसीह होने के नाते आपके पास ऐसा कुछ नहीं जहां पर आप लूज करेंगे There's nothing to lose. और ऐसा कुछ नहीं जहां पर हम कुछ खोएंगे। Every mother and every father हर एक जो माँ बाप हैं should raise up your children for Jesus. आपके बच्चों को आपको परमेश्वर की महिमा के लिए बड़ा करना है। We need to teach them the word of God. हमें बच्चों को क्या करना है? यीशु मसीह के वचन को सिखाना है। We need to teach them to be bold for Jesus. हमें लोग को सिखाना है यीशु मसीह की महिमा के लिए साहसी बनने के Not be लिए। afraid. डरना नहीं है। Believers in Goa should be raising their voice for और Jesus. गोवा के जो विश्वासी यीशु मसीह की महिमा के लिए अपने आवाज को उठाना है। When I sit and think about certain things, जब मैं बैठकर सोचता हूँ कुछ विषय को लेकर के, I see how believers are losing the freedom in Goa. मैं देखता हूँ कि कैसे विश्वासी लोग फ्रीडम को खो रहे हैं। Because too many of them are worried about their status and their finance. क्योंकि बहुत से लोग उन लोग अपने फाइनेंस को लेकर के, स्टेटस को लेकर के चिंतित हैं Too many are worried about their friendship of the और world. दोस्तों को लेकर के लोग चिंतित रहते हैं। Can I tell you this? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, If God has given you influence in the world, अगर परमेश्वर ने आपको इस संसार में प्रभावित को दिया है it is for you to use it for the glory of God. और ये आपके लिए था कि आप इसको परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सके। I know all the leaders. मुझे सब लीडर के बारे में पता I है। know all the police. हर एक पुलिस के मुझे पता है। They are my friends. वो लोग मेरे दोस्त हैं। Then use that influence for the glory of तो God. उस इन्फ्लुएंस को तुम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करो। For the furtherance of the gospel. परमेश्वर के शुभ समाचार के लिए तुम इस्तेमाल करो। They were told not to preach. उन लोगों को कहा गया कि प्रचार ना करो। They were told to keep quiet. उन लोगों को कहा गया कि तुम लोग चुपचाप रहो। But look what verse number 29 says. लेकिन वचन 29 में देखो क्या कहता है। Then Peter तब पतरस and other apostles answered and said, और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, we ought to obey God मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर rather than man. परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। We ought to obey God हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है rather than man. मनुष्य से अधिक। Okay, I want you to say this. We ought to obey God rather than man. Again, we ought to obey God rather than man. Okay, let's do it together. We ought to obey God rather than man. I'm not going to leave you until we all get it like a slogan. We ought to obey God rather than man. We ought to obey God
rather than man. We ought to obey God rather than man. Come on, everybody. We ought to obey God rather than man. Come on, 1, 2, 3. We. Again. We ought to obey God rather than man. Come on, say it. Come on again. I want you to say that even in the midnight when something happens. Tonight the dream should be, we ought to obey God rather than man. We ought to obey God rather than man. Come on, you're not doing good. Come on. You know what the world, the Goa should know our church as? Crazy church. गोवा के लोगों को हमें कैसे जानना है ताकि उन लोग जाने कि हमारा जो कलीसिया है वो बहुत ही परमेश्वर के लिए पागल है. They are crazy for Christ. उन लोग प्रभु की महिमा के लिए उन लोग बहुत ही पागल हैं. They are willing to give up anything for Christ. उन लोग परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ भी छोड़ना चाहते They हैं. are not ashamed of the Lord Jesus उन लोग Christ. यीशु मसीह के लिए लज्जित नहीं है. Tomorrow you can tell me not to preach, कल को अगर आप कहेंगे मुझे प्रचार नहीं करना but I है will preach the gospel. लेकिन मैं फिर भी सुसमाचार प्रचार करूंगा. Will you come to church tomorrow if the tells you not to come? Amen. Amen. I will come. Amen. Amen. We ought to obey God हमें परमेश्वर की पालन करना है rather than man. मनुष्य से बढ़कर. The law will say you cannot worship God. What will you do? और कानून अगर आपको कहेंगे आप आराधना मत करो उस समय आप क्या कहेंगे? We ought to obey God. Rather than man. The law will make us, the law will be strict and say, no going to church, no preaching Jesus, no worshiping Jesus anymore. What will you do? Amen. Amen. The village people will say, no, you guys cannot worship Jesus. You cannot have a family prayer. What will you do? Hallelujah. My dear friends, that is the slogan of the first century church. मेरे प्रिय वही स्लोगन था जब कलीसिया के समय में उन लोग कर रहे थे उस समय. The early church says we ought to obey God rather than man. शुरुआत के लोग कह रहे थे कि मनुष्य से बढ़कर हमें यीशु की आज्ञा का पालन करना है. We ought to obey God rather than man. मनुष्य से अधिक हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है. We ought to obey God rather than man. मनुष्य से अधिक हमें परमेश्वर की आज्ञा पालन करना है. What should we do? हमें क्या करना है? What should we do? What? Hallelujah. हालेलुया. Give a clap offering to God. We ought to obey God rather than man. मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है. We ought to obey God rather than man. मनुष्य से अधिक हमें परमेश्वर की आज्ञा पालन करना है. What should we do? हमें क्या करना है? People may say, but Pastor, be careful what you say. तो लोग कहेंगे आप बहुत ही सावधान रहो आप जो कुछ भी आप कहते हैं. I can't be careful of what I say. जो कुछ भी मैं कहता हूँ उसके ऊपर मैं बहुत केयरफुल नहीं हो सकता हूँ. No matter what I say, I will be in trouble anyway. चाहे मैं जो कुछ भी कहूँ मैं समस्या में पड़ने वाला हूँ. But one thing I know. लेकिन एक चीज मुझे मालूम है. If you obey God rather than men, you can never go wrong. अगर आप मनुष्य अधिक अगर आप परमेश्वर की आज्ञा पालन करेंगे आप कभी भी गलत नहीं होंगे. You can never be wrong if you obey God. अगर आप परमेश्वर की आज्ञा पालन करेंगे आप कभी भी गलत नहीं होंगे. You rather strive to obey God and be right in the sight of God. आपको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके सही मार्ग में जाना है. Man may think you are stupid. शायद जो लोग हैं शायद सोचेंगे कि आप स्टूपिड हैं. Man may think that you are gone out of your brain and mind. शायद लोग कहेंगे कि आप अपने मन से बाहर जा चुके हैं. Man may say, the world may think that you are out of your mind. शायद संसार के लोग सोचेंगे कि आप अपने मन से बाहर जा चुके हैं. But we know one thing. लेकिन हमें मालूम है एक चीज.
Hallelujah. हालेलुया। We ought to obey God हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है rather than man. मनुष्य से अधिक। Nobody is going to give you red carpets anymore in the world. और संसार में कोई भी आपको रेड कारपेट नहीं देने वाले हैं संसार में। Nobody is going to give you a bed of roses in this world today. कोई भी आपको गुलाब का बिस्तर नहीं देने वाले हैं और It's going to be hard. ये बहुत ही कठिन होने वाले हैं। This world is not going to be good anymore. और ये संसार और अच्छा नहीं होने वाले मेरे प्रियो। Don't believe the charismatic messages. और कैरिस्मेटिक के जो संदेश है उसका आप विश्वास मत करो। It's going to be good. सब कुछ सही हो जाएंगे। It's going to be beautiful. सब कुछ खूबसूरत हो जाएंगे। Everything is going to be wonderful. सब कुछ खूबसूरत हो जाएंगे। Nothing is going to happen. कुछ भी ऐसा नहीं होंगे मेरे प्रियो। You know what this book says? क्या आपको पता है ये जो किताब है क्या कहता है? This world is going to become worse by worse और every ये जो day. संसार है और भी ज्यादा बुरे होने वाले हैं It's going to be bad. और ये बहुत ही खराब होने वाले हैं। But there is a good news लेकिन एक अच्छा समाचार है for the Christians. मसीहों के लिए। We are going to a better place. और हम उससे भी अधिक अच्छे जगह में हम जाने वाले हैं। A beautiful place. बहुत ही खूबसूरत जगह में हम जाने वाले हैं। A joyful place. बहुत ही आनंदमय जगह में जाने वाले हैं। A place filled with glory and grace. और ऐसा जगह जहाँ पर महिमा से भरे हुए हैं, Full of pleasure. बहुत आनंद से भरे हुए जगह। It's not about heaven. ये केवल स्वर्ग के बारे में नहीं है, It's about Jesus. ये यीशु मसीह के बारे में है। Where Jesus is, जहाँ पर यीशु है there heaven is. वहाँ पर ही स्वर्ग है। I don't want to go to heaven where Jesus is not there. मैं स्वर्ग में नहीं जाना चाहता हूँ अगर वहाँ पर यीशु मसीह नहीं है। I want to go where Jesus is. मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ जहाँ पर यीशु मसीह है। And where Jesus is, जहाँ पर यीशु है that place is called heaven. उसको ही हम क्या कहते हैं? स्वर्ग कहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। You have nothing to lose, dear friend. आपके पास ऐसा कुछ नहीं जहाँ पर आप खोएंगे। We have already lost everything. हम सब कुछ खो चुके हैं। We don't belong to ourselves anymore. हम खुद के नहीं इस समय, We belong to Him. हम यीशु मसीह के हैं Because He warned us. क्योंकि उसने हमें जीता है। He bought us with His price. अपने लहू से उसने हमें खरीदा है। He shed His blood and bought us. उसने लहू को बहाकर हमें खरीदा है। I don't know if anybody is here who is not saved. मुझे नहीं मालूम यहाँ पर अगर कोई है जहाँ जिसका उद्धार नहीं हुआ अभी तक। But I think somebody is here who is not saved. देखिए मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर कोई है जो है उद्धार नहीं पाया And है। this morning the Holy Spirit is speaking to you. और आज के सुबह में पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है, You may be thinking you are saved. आप शायद सोच रहे हैं कि आप उद्धार पाए हुए हैं, Because someday you got baptized somewhere not knowing who Christ is. क्योंकि कौन सा तो दिन में आपने क्या लिया है? बपतिस्मा लिया है यीशु मसीह को। You may think you are saved because you are praying. क्योंकि आप प्रार्थना करते हैं तो आपको लगता है कि आपने उद्धार पाया है। You may think you are saved because you were born in a Christian family. आपने मसीह परिवार में जन्म लिया है इसलिए आपको लगता है कि आपने उद्धार पाया है। But the Bible says लेकिन बाइबल कहती है that is not how you get saved. उस प्रकार से आप उद्धार नहीं पाते हैं। If somebody would ask you, share with me the gospel, अगर कोई आपसे पूछेंगे कि मेरे साथ आप सुसमाचार को शेयर करो, are you able to share the gospel to them? क्या आप उन लोगों के साथ सुसमाचार को बांट सकते हैं? Can you tell them this is what the gospel is? क्या आप बता सकते हैं कि यही शुभ समाचार है? Do you know who God is? क्या आपको मालूम है कि परमेश्वर कौन है? Jesus is God. यीशु मसीह परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। And He loves us all. और वो सबको प्यार करता है And He doesn't want anyone to go to hell. और वो नहीं चाहता कि कोई नरक को जाए। Hell was not created for man. नरक मनुष्य के लिए तैयार नहीं किया गया है। Hell was created for Satan and his angels. और जो नरक है शैतान और उसके दूत के लिए बनाया गया है। Man is going to hell today because he chose to reject the love of truth. और आज जो मनुष्य है नरक को इसलिए जाते हैं क्योंकि उन लोग सच्चाई को नकारते हैं। And God is saying, और परमेश्वर कहता है, I love you. मैं तुमसे प्यार करता हूँ। Even though you are a sinner, अगर भी आप पापी हो, I love you. मैं तुमसे प्यार करता हूँ। And look what I did for you. और देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है। I became man, मैंने मनुष्य बना came into this world. और इस संसार में आया। I took your sins upon me. मैंने तुम्हारे पाप को अपने ऊपर उठाया And I died on the cross और क्रूस पे मैंने मर गया। of Calvary. कलवरी के क्रूस में Nothing can forgive your sins. कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपके पाप को क्षमा कर सकता है। No water of any river can forgive your sin. और नदी के कोई भी पानी आपको शुद्ध नहीं कर सकता है। No priest or pastor can wash away your sin. कोई भी याजक कोई भी पासवान आपको क्षमा नहीं कर सकता है। So I shed my blood. तो मैंने अपना लहू को बहाया है Because it is only through the blood of Christ your sins can be क्योंकि forgiven. ये केवल यीशु मसीह के लहू के माध्यम से आपके पाप क्षमा होंगे। So Jesus shed his blood तो यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू को बहाया and he died on the cross of Calvary. और उसने कलवरी के क्रूस पे मर गया। He died यीशु मसीह मर गया so that you can have his life. ताकि आप यीशु मसीह के जीवन को प्राप्त कर सकें। That's why when Christians, when we receive Jesus, we receive everlasting life. इसलिए जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं हम अनंत जीवन को हम प्राप्त करते We हैं। receive eternal life. Eternal life is a person. अनंत जीवन क्या है? एक व्यक्ति है।
And so Jesus is that person. और यीशु मसीह वो व्यक्ति है, We receive his life. और हम उसके जीवन को हम ग्रहण करते So हैं। Jesus shed his blood. तो यीशु मसीह ने अपना लहू को बहाया, He died. वो मर गया, He was buried. उसको गाड़ा गया, But on the third day, और तीसरा दिन he rose again victoriously. और वापस से वो जीवित हुआ। Many people came and said they are spiritual leaders. बहुत से लोगों ने आकर के कहा कि उन लोग आत्मिक या गुरु हैं। They died, उन लोगों ने मरा, they were burned, उन लोगों को जलाया गया, or they were buried. और शायद उन लोगों को गाड़ा भी गया, But no one rose again. लेकिन कोई भी वापस जी नहीं उठा। But glory to God. लेकिन प्रभु की महिमा हो, The Lord Jesus Christ यीशु मसीह rose again वापस से जी उठा पूरे victoriously विजयता के साथ, because He's a true living कि वो God. सच्चा परमेश्वर Lift है। up your hands and say hallelujah हाथ को to उठा करके Jesus. हालेलुया, Give a clap offering to Jesus. ताली बजाकर महिमा देंगे इस समय। And Jesus rose again victoriously. और यीशु मसीह तीसरा दिन वापस जी उठा। Today Jesus is telling you and me, और आज यीशु मसीह हम प्रत्येक जनों से कह रहा है, I am the way, मैं ही मार्ग हूँ, the truth, सत्य हूँ and the life. और जीवन हूँ। No man cometh to the Father कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता है, but by me. लेकिन मेरे द्वारा जा सकता है। Yes, dear friends. हाँ मेरे प्रियो, There is only one way. केवल एक ही मार्ग है, There is only one way to heaven. एक ही मार्ग है जहाँ पर आप स्वर्ग को जा सकते हैं, And that is through the Lord Jesus और वो Christ. यीशु मसीह के द्वारा, No other way. और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। No religion can save you. कोई भी धर्म आपको नहीं बचा सकता है, Only Jesus can save you. केवल यीशु मसीह आपको बचा सकता है। No pastor can save कोई you. भी पासवान आपको नहीं बचा सकता No है, church can save कोई भी you. कलीसिया आपको नहीं बचा सकता, Only Jesus Christ. केवल यीशु मसीह आपको बचा सकता है। And today, और आज the Lord is calling. और यीशु मसीह आपको बुलाता है। If you're not sure of your salvation, अगर आपके उद्धार को लेकर आप निश्चित नहीं है, I don't want you to waste time. मैं नहीं चाहूंगा कि आप अपने समय को खराब करें। Today is the day of और salvation. आज उद्धार का दिन है। Today. आज Today is the day of salvation. आज उद्धार का दिन है, Now is the accepted time. और ये समय है ताकि आप यीशु को ग्रहण कर सके। Don't harden your heart अपने हृदय को कठोर मत करो, because you don't know what is tomorrow. क्योंकि आप नहीं जानते कल को क्या होंगे। Because if you die without Jesus, क्योंकि अगर आप ये बिना यीशु के मरते हैं, you are going to hell by your own choice. आपके खुद के चॉइस से आप नरक को जाएंगे। God is not sending you. You are going by your own choice. परमेश्वर आपको नरक में नहीं भेज रहे हैं, आप अपने चॉइस से आप जा रहे हैं नरक The को। Lord is saying, come to me. और यीशु कह रहे हैं कि आप मेरे पास आओ, I will save you today. मैं तुम्हें आज बचाऊंगा। Whom are you going to obey? क्या आप जीतने वाले हैं? Are you going to obey God क्या आप परमेश्वर का पालन करेंगे, or are you going to obey the devil? या फिर आप शैतान का पालन करेंगे? Whom are you going to obey? किसको आप पालन करेंगे? Hallelujah. हालेलुया। Obey God today, आज प्रभु को पालन करो, not tomorrow. कल नहीं। You don't know about tomorrow. आप नहीं जानते कल को क्या होंगे। Start today. आज से शुरुआत करो, Ask God. परमेश्वर से पूछो। If you're a Christian, अगर आप मसीह हैं, say, Lord, कहें कि प्रभु, I want to be that courageous Christian, और मैं बनना चाहता हूँ उस प्रकार के मसीह जो बहुत ही साहस भरा है, bold Christian. पूरे साहस से भरा हुआ I मसीह। want to be on fire and passion for Christ. मैं आपकी महिमा के लिए आग में होना चाहता हूँ। I don't want to be afraid of the world, मैं God. संसार से डरना नहीं चाहता हूँ I प्रभु, want to obey the law of the country, और मैं इस कंट्री के लोगों को पालन करना चाहूंगा, but I want to obey you first, लेकिन मैं सबसे पहले आपको पालन करना चाहूंगा, because we ought to obey God क्योंकि हमें प्रभु का पालन करना है rather than man. मनुष्य से अधिक। Amen. आमीन। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Father in heaven, स्वर्गीय पिता, we thank you for this day. आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, Thank you for the message. और इस संदेश के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। I pray that you will bless your children today. मैं प्रार्थना करता हूँ ताकि आप अपने बच्चों को आशीष करें। All those who heard the word of God, जितने लोगों ने सुना है आपके वचन को, stir their heart, उन लोग के हृदय को आप स्टर करो पिता stir परमेश्वर। their mind, उन लोग के मन को आप उठाइए पिता, increase their faith, उन लोग के विश्वास को आप बढ़ाइए पिता, make them bold. उन लोग को आप साहसी बनाइए। I pray they will never be afraid मैं प्रार्थना करता हूँ ताकि उन लोग कभी भी ना डरे, of no man in this world. और इस संसार के किसी व्यक्ति से ना डरे, If they ever have to fear, ताकि उन लोग को ऐसा ना हो सके कि it डरे, ought to be about God.
ताकि उन लोग केवल आपको डरे पिता परमेश्वर। I pray, O God, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ that प्रभु, our church will be about magnifying Christ, ताकि हमारे कलीसिया केवल आपको महिमा देने के लिए, आपको बढ़ा दिखाने के लिए हो not सके, about ourselves, हमारे बारे में नहीं पिता but परमेश्वर, about Christ. लेकिन केवल यीशु के बारे में। We give you glory and honor. हम आपको महिमा देते हैं We पिता, give you the praise. हम आपको स्तुति देते हैं। In Jesus' precious name, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते we हैं, ask and pray. हम इस समय प्रार्थना करते हैं। And all God's people said, Amen. and again, Amen. and again, Amen. amen. God bless you.